जय हिंद बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है, इट इज अंडर यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, क्लास 11th एनसीईआरटी। सो एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन comes under the section genetics। जेनेटिक्स में दो चीजें हमें पढ़नी है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इट इज एक्चुअली कैन बी अंडरस्टूड विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे हम जानते हैं देयर आर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड आफ्टर fertilization there is formation of a zygote which develops into offspring। so इस कोर्स में क्या होता है कि मेल कैरेक्टर्स एंड फीमेल कैरेक्टर्स बोथ आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ऑफस्प्रिंग्स। तो जो ऑफस्प्रिंग्स और जो यंग वन डिराइव्ड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उनमें फादर के भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और मदर के भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। सो द transmission of characters from parents, either male or female, to their offspring is called as inheritance। तो inheritance की अगर हम definition लिखना चाहें तो we may write as it is the transmission of characters from parents to their offspring। but inheritance के साथ साथ sexual reproduction में देखा जाता है कि the offsprings which are formed after sexual reproductions are not exactly carbon copy of their parents. There is some dissimilarity also present। So in the process of reproduction, some characters or some new characters may develop in the offsprings, or some characters which are present in parents can be suppressed in the future generation। so this makes differences between offsprings and parental, so it is called variation in their characteristic features। so what are the factors, ये जो inheritance होते हैं या जो variations होते हैं during the course of evolution, during the course of sexual reproduction, is actually can be understood with the help of some principles which are given in genetics। ये जो प्रिंसिपल कैसे डेवलप किए, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए इन प्रिंसिपल को डेवलप करने में, वो सारे प्रिंसिपल्स, लॉज एंड एक्सपेरिमेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का चैप्टर है, ये एग्जैक्टली जो भी कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है उनको स्टडी करेंगे हम इन पूरे चैप्टर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जेनेटिक्स में है मेंडल का। मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। हिज फुल नेम इज ग्रेगर मेंडल। सो मेंडल इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज द फर्स्ट ऑफ ऑल ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स on pea plants, and also he handled his results and very accurately। so let us discuss about the contribution of Mendel. What was his experiment? Only then we can understand the principles and procedures to understand the inheritance of different characters in living organisms which are showing sexual reproduction। तो जेनेटिक्स सिंपली मेंडेलियन जेनेटिक्स समझने के लिए आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो गैमेट का फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन एंड ऑफस्प्रिंग्स का डेवलपमेंट, all these concepts should be clear। you should have also knowledge of mitosis and meiosis। so all these things are going to be included under this chapter, principle of inheritance and variation।
So first of all, let us discuss some historical account of Mendel. So his name is Gregor Johann Mendel, which is called as, he is Gregor Mendel. He was the pioneer in his field and his experiments were very accurate, very authentic. So he is called as father of genetics. Later on, this branch of biology came as genetics. So Mendel is considered as father of genetics. मेंडल को बहुत बड़ा, क्योंकि मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बाद इन लोगों ने जो भी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो क्यों हो रहे हैं, उनके पीछे क्या वजह है, वो मेंडल ने सबसे पहले प्रूव किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स में. बट वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट मेंडल इज दैट ही वाज नॉट ए बायोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन. ये कोई बायोलॉजिस्ट नहीं थे. He was a mathematician by profession and was working as a priest in a church. ये क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे और एक चर्च में ही रहते थे और उस चर्च में कुछ खाली स्थान थे गार्डनिंग के लिए, जो प्लेसेस थे, स्पेसेस थे, यूज टू डू गार्डनिंग बिकॉज ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग गार्डनिंग वर्क. इन्हें खेती करने का बहुत शौक था. सो उसी गार्डन के, चर्च के गार्डन में ही उन्होंने पी प्लांट पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए एंड फाइनली इन एक्सपेरिमेंट्स को नाम दिया गया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट. तो हम मेंडल के कंट्रीब्यूशन को तो जानेंगे, बट इनके कंट्रीब्यूशन को जानने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि उनके एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए यूज होगी, हमें डिस्कस कर लेना चाहिए. पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर वेरी मच हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक्स. तो मेंडलिज्म को तो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज. इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के. मेंडल्स first law, second law and third law based on his experiments on pea plant. So before going in detail on the experimental work, let us discuss some important terms. So first important term जो कि आपको genetics में throughout genetics मिलेगा, that is genes. क्योंकि मेंडल का मानना, मेंडल ने भी एक्सपेरिमेंट में अपने कंफर्म किया था कि जो भी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है उसके लिए कोई चीज, कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि बाद में डिस्कवर हुआ कि वो जीन्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम के पार्ट होते हैं. तो सबसे पहले हम ये जीन्स क्या होते हैं उनको कर रहे हैं. जीन्स, तो जीन्स एक्चुअली जो ये इनहेरिटेंस होता है कैरेक्टर्स का, फॉर एवरी कैरेक्टर्स, टू रिप्रेजेंट एवरी कैरेक्टर्स अ जीन इज रिस्पॉन्सिबल. So a gene can be defined as unit of inheritance. क्या होते हैं? It is unit of inheritance. ये क्या होते हैं? और मोर टेक्निकली कहा जाता है चाहे तो ये डीएनए के कुछ सेगमेंट भी होते हैं. इट इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट प्रेजेंट ऑन डीएनए और इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है अंडर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस में, क्योंकि जो भी कैरेक्टर्स एक इंडिविजुअल से पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं वो जीन्स के थ्रू ही ट्रांसमिट होते हैं, जो कि एक्चुअली एक डीएनए का पार्ट है. कुछ बेस सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए को, वो जीन कहते हैं. तो जैसे हम जानते हैं कि जो जीन्स होते हैं, जो डीएनए होते हैं, वो क्रोमोसोम पे होते हैं
और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म विच आर डिप्लॉयड इन नेचर, तो एक जीन एक जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, इसलिए जो जीन्स भी होते हैं वो भी पेयर्स में ही प्रेजेंट होते हैं, और एक्चुअली इनको एलील्स कहा जाता है। पेयर ऑफ तो सो जीन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पेयर्स एंड ईच इंडिविजुअल ऑफ पेयर इज कॉल्ड एलील। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म is alleles. Alleles. Alleles क्या होते हैं? It is a form of genes. Different forms of genes. Different form of a gene. एक ही जीन के दो रूप होते हैं जो कि एक्चुअली होमोलोगस क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें एलील कहा जाता है। तो जो ये जो जीन्स होते हैं, सपोज जीन्स किसी एक कैरेक्टर को सिग्निफाई करते हैं, सो अगर हम एक कैरेक्टर स्टडी कर लें कि टॉलनेस कैरेक्टर, हाइट ऑफ ए प्लांट, जो लेटर डिस्कस करेंगे हम मेंडेलियन जेनेटिक्स में, तो सपोज हाइट ऑफ ए प्लांट एग्जांपल, अगर जीन को हम रिप्रेजेंट करना चाहें, हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट एक कैरेक्टर, तो इसके लिए जो जीन है वो पेयर्स में होंगे, और जो एलील्स हैं वो फॉर्म ऑफ जीन ही होते हैं। तो सपोज अगर इसके एलील की हम बात करें तो एलील कैपिटल टी भी हो सकता है, और जीन का दूसरा फॉर्म भी होता है जो कि लेस इफेक्टिव होता है, उसको हम इसी के शॉर्ट फॉर्म लेटर से कहते हैं, दैट इज स्मॉल टी से। तो एलील तो हम कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्मॉल टी से। जो कैपिटल वर्ड एक्चुअली यूज होता है वो डोमिनेंट एलील के लिए होता है। डोमिनेंट और रेसेसिव क्या है वो हम बाद में थोड़ी देर बाद समझते हैं। डोमिनेंट, ये डोमिनेंट एलील होता है, एंड जो स्मॉल टी से अगर हम किसी को डिनोट करते हैं then it is recessive allele. Recessive allele. तो किसी भी जीन का किसी भी जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डोमिनेंट एलील हो सकता है और एक रेसेसिव एलील हो सकता है, बट ये एलील्स हैं। लेकिन एक कैरेक्टर और एक जब जीन रिप्रेजेंटेशन होगा तो जीन्स आर प्रेजेंट ऑलवेज इन पेयर्स। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी से देयर कैन बी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। एक हो सकता है अगर हमें इनका पेयर बनाना होगा तो कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी भी आ सकता है, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी आ सकते हैं, स्मॉल टी स्मॉल टी। सो देयर आर 3 possible combinations from 2 alleles, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ये तीनों these 3 combinations represent different 3 forms of gene or conditions of gene. The first condition is called as homozygous because both the alleles are same. First is also homozygous and the last is also homozygous. But in first case, both dominant alleles are present, so it is called as homozygous dominant. Homozygous dominant. And the second case is called homozygous recessive.
क्योंकि इसमें दोनों स्मॉल टी कॉम्बिनेशन है। जो थर्ड केस, मिडिल केस है, इन विच देयर इज अ डोमिनेंट एलील एंड देयर इज अ रेसेसिव एलील। सो ये कंडीशन क्या होगा, टू टाइप्स है, तो इसको हम कहेंगे हेटेरोजाइगस। तो ये कंडीशन हमें याद रखना है कि होमोजाइगस कब कहेंगे, हेटेरोजाइगस। कैपिटल फॉर्म्स का रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो डोमिनेंट होगा। तो इस केस में जो प्लांट होता है टॉल होता है, जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में हम सीखेंगे। हेटेरोजाइगस में और ये डोमिनेंट और रिसेसिव एलील का जो क्लासिफिकेशन होती है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है उसे हम डोमिनेंट एलील कहते हैं। So in Mendelian experiment it was observed that in homozygous condition the plants were tall, not dwarf. So the dominant character is tall and recessive character is dwarf. इसी के बेसिस में हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो, जो दिखे, उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, और जो कैरेक्टर सप्रेस हो जाए उसे हम रेसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। तो हाइट के केस में टॉलनेस इज डोमिनेंट एलील एंड ड्वार्फनेस इज रेसेसिव एलील, इज ड्यू टू रेसेसिव कैरेक्टर। सो एक इसमें टॉल प्लांट इज ड्यू टू डोमिनेंट एलील एंड ड्वार्फ प्लांट इज ड्यू टू रेसेसिव एलील इन होमोजाइगस कंडीशन। तो ये कुछ टर्म्स पहले एक बार आपको याद समझने पड़ेंगे, ओनली देन यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेंडल। एलील्स के बाद आपने कितने 5 टर्म्स समझ लिए, डोमिनेंट, रेसेसिव, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। Now let us discuss some other important terms related to Mendelian genetics. Okay, so next कुछ और important terms हम discuss कर लेते हैं। The next term is जीनोटाइप, किसे कहते हैं जीनोटाइप। तो जब जो भी हमने जीन का कॉम्पोजिशन डिस्कस किया था, और जेनेटिक कॉम्पोजिशन फॉर ए कैरेक्टर इज कॉल्ड इट्स जीनोटाइप, और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जीनोटाइप इज जेनेटिक कॉम्पोजिशन of a character। किसी भी कैरेक्टर का जीन्स कौन से रिस्पॉन्सिबल है, वो जीन्स के रिप्रेजेंटेशन को ही हम जीनोटाइप कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कैपिटल T इज अ जीनोटाइप फॉर डोमिनेंट जीन। टॉल प्लांट इज अ जीनोटाइप फॉर टॉल प्लांट। एक प्लांट क्या होगा, टॉल। कैपिटल T, स्मॉल t, इट इज ऑल्सो टॉल। स्मॉल t, इट इज ड्वार्फ। ये क्या होगा प्लांट, और ये जीनोटाइप होगा तो तब होगा। इन फर्स्ट केस द जीन हैव both the dominant allele, so it represents tall plant। सेकेंड केस में जीन में, प्लांट्स के अंदर एक जीन डोमिनेंट एलील, जीन में एक एलील डोमिनेंट है और दूसरा रेसेसिव है, बट द प्लांट इज टॉल। सो द फर्स्ट टॉल इज कॉल्ड होमोजाइगस टॉल। इट इज, इसमें भी डिफरेंस है, होमोजाइगस
ये टॉल होगा ड्यू टू होमोजाइगस टॉल, बट द सेकेंड प्लांट जो एक्सटर्नल अपीयरेंस दोनों प्लांट्स के सेम होंगे, बट द जेनेटिक कंपोजिशन विल बी डिफरेंट, and this tall is due to heterozygous condition. Heterozygous. और dwarf तो homozygous condition होना ही है. It is homozygous because both the alleles are necessary. Homozygous. Homo मतलब same, zygous means zygote. मतलब इस प्लांट का जो कंपोजिशन है इसमें दोनों जाइगोट्स जीन्स सेम टाइप के हैं, इसमें भी सेम टाइप के हैं, बट हियर द एलील कंपोजिशन इज डिफरेंट, सो इट इज हेटेरोजाइगस। तो ये जो जेनेटिक कंपोजिशन है इसको हम जीनोटाइप कहते हैं, और जो फिजिकल अपीयरेंस है टॉल, ड्वार्फ, टॉल, इट इज द फिनोटाइप ऑफ प्लांट। तो कोई भी कैरेक्टर्स का एक जेनेटिक बेसिस भी होता है और एक फिनोटाइपिक अपीयरेंस भी होता है। सो द नेक्स्ट टर्म इज फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए कैरेक्टर। कोई भी टॉल है तो वो दिखता टॉल में, फिर हाइट कितनी है, that is will be its phenotypic character. So physical appearance of a character. कोई भी कैरेक्टर फिजिकली कैसा दिख रहा है, कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ये कैरेक्टर एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। इज नॉट नेसेसरी कि आप सारे विजिबल कैरेक्टर्स भी हों, बट उनका एक्सप्रेशन जरूर होता है। या हम फिनोटाइप को कह सकते हैं, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। जो जीन एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशन आगे हम सेकेंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि जीन का एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्चुअली कोई भी जीन होता है तो वर्क करने के लिए सबसे पहले उस जीन से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, एंड फाइनली प्रोटीन डिसाइड्स द फेट ऑफ ए जीन। जो भी किसी भी जीन का फाइनल जो फंक्शन है उससे बनने वाला उसका प्रोटीन डिसाइड करता है कि व्हाट विल बी द फंक्शन, वेदर द जीन इज showing particular function or not, that is decided by the proteins formed by that gene. So हम next chapter में detail में discuss करेंगे. So phenotype means it can be simply said as it is the expression of a gene. Expression of a gene. कोई भी जीन किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इट्स फिनोटाइप और फिनोटिपिक कैरेक्टर. Now next important term related to Mendel or to understand the Mendel's experiment, we have to know what is pure line or pure breeding or true breeding. True breeding. BRE, true breeding line. So true breeding line क्या होते हैं कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें two parents are selected. One is male parent, male plant, and another is female plant. और उनके बीच में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होती है. तो इसमें जो प्लांट्स होते हैं मेल और फीमेल, बोथ आर ट्रू लाइन, यानी बोथ आर इन होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं होता है. सो ये जो प्योर लाइन है ये आइदर होमोजाइगस टॉन होगा या फिर होमोजाइगस ड्वार्फ यानी
डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर होना चाहिए या होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर होना चाहिए। सो प्योर लाइंस आर फॉर्म्ड, ये फॉर्म कैसे होते हैं? दीज प्योर लाइंस आर फॉर्म्ड बाय सक्सेसिव सेल्फिंग ऑफ होमोजाइगस प्लांट। होमोजाइगस प्लांट को ही या डोमिनेंट ट्रेट को ही, एक पर्टिकुलर ट्रेट को ही सेल्फिंग से, मतलब सेम टाइप ऑफ प्लांट्स को थ्रू आउट जनरेशंस, कुछ 4 to 5, 6 जनरेशंस तक उसकी रिप्रोडक्शन कराने के बाद हमें ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स बनते हैं। तो दीज आर फॉर्म्ड बाय successive selfing of a homozygous plant for several generations. तो सपोज हमें डोमिनेंट का प्योर लाइन बनाना है, तो जो भी टॉल प्लांट होंगे उनको हम प्रॉफिट से सिलेक्ट करेंगे, और फिर उसका मेल पार्टनर भी टॉल होगा और फीमेल प्लांट भी टॉल होगा। तो उसको हम अगर 2-4 जनरेशन सेल्फिंग कराए ऐसे पार्टनर्स का, तो अगर उसमें कोई होमोजाइगस टॉल भी होगा तो वो नेक्स्ट जनरेशन में एलिमिनेट कर जाएगा। एंड आफ्टर 6 to 7 जनरेशन व्हाट वी विल गेट द प्योर टॉल प्लांट। लाइकवाइज होमोजाइगस कंडीशन में तो जो रिसेसिव कंडीशन होगी वो तो फर्स्ट जनरेशन में हमें मिल जाएगा, बिकॉज जो ड्वार्फ कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर इज ओनली पॉसिबल if the plant in homozygous condition. Heterozygous condition में तो recessive character आएगा नहीं, so it is very easy to select the recessive homozygous condition as compared to dominant homozygous condition. So these are some important terms which will be used in genetics or understanding the experiments of genetics. So we will discuss Mendelian genetics in the next class. Thank you.